I'm Muhammad Abdurrahman from Park Pure Line. So, first of all, I will introduce about Park Pure Line. That what Park Pure Line is doing. Basically, we are working in the domains of food safety, halal, and nutrition. So, under these domains, we are working on several projects that has been mentioned in this slide. That you can see from here that we are conducting food safety awareness sessions, technical trainings, workshops, and seminars. Also, we are offering our advisory and R&D facilities to food industry and private sector as well. Along with that, we are offering third-party certification services that we are running these projects in collaboration with different public and private sector organizations. So these are our collaborators. Along with these, we are working on several projects that I have stated already. So along with that, we're also going to launch our own pilot project of food processing and food value addition. So we will take start from spices processing. So soon, inshallah, you will see in market our brand name with the name of Park Pure Line, and our slogan is will be simply pure. So inshallah, soon we are going to launch these products with our own brand name as Park Pure Line. So this was little introduction about Park Pure Line. Now directly we will talk about the topic of today's awareness session, that is prerequisite programs building your HACCP foundation. सो पीआरपीज के मतलब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स हैं क्या बेसिकली, और हैसअप के साथ इनका क्या कंसर्न है, हैसअप के पर्सपेक्टिव में हम इनको क्यों डिस्कस करते हैं, और इनकी फूड इंडस्ट्री में और प्रोफेशनल सेटअप्स पे किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है. Okay, let me talk about the contents of today's training. That we will talk regarding what is HACCP, what is the concept of HACCP, introduction to prerequisite programs. Then prerequisite programs will be discussed in detail one by one. Then we will talk about OPRPs for HACCP. So the comparative study and different case studies will also be discussed in this training. Okay, first of all, let me talk about HACCP. Any one of you people can describe about HACCP? आप में से कोई भी हैसअप के बारे में कुछ जानता हो तो आप बता सकते हैं. नो सर, आप बता दें. Okay, HACCP basically stands for Hazard Analysis and Critical Control Point. So HACCP इसकी जो बेस है वो फूड सेफ्टी है. फूड सेफ्टी को हम फर्दर अकॉर्डिंग टू सम प्रपोज्ड पैरामीटर्स जब स्टडी करते हैं इन प्रोफेशनल सेटअप्स इन फूड इंडस्ट्री ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोडक्शन. सो फूड सेफ्टी के जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको हम जब एक मैकेनाइज्ड वे में डिस्कस करते हैं, लाइक फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है, इसी तरह हैसअप हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट स्टैंडर्ड है. सो इनको हम जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की, तो उसमें हमारे पास एक फुल सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं हाउ टू इंश्योर आवर फूड फ्रॉम एनी concerns that are arising from bad processing practices that are arising from raw material production at feed level or after or during the processing or supply chain. So along with that, HACCP is basically a hazard analysis approach that we conduct hazard analysis to study the HACCP concept. हम बेसिकली हैसअप के अंदर फूड सेफ्टी को ही स्टडी करते हैं, लेकिन इसमें हैजर्ड्स को एनालाइज करने की अप्रोच को हम डिस्कस करते हैं कि मतलब फूड सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी हैजर्ड्स हैं,
लाइक नॉर्मली 3 किस्म टाइप्स के जो है वो हैजर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइक फिजिकल हैजर्ड, केमिकल हैजर्ड और बायोलॉजिकल हैजर्ड। सो इन हैजर्ड्स को हम स्टडी करने के लिए हैसप का कंसेप्ट उसको अडॉप्ट करते हैं। बेसिकली इन शॉर्ट, हैसप सिस्टम which includes a series of procedures to control the processes and sensitive points in the food chain, with the ultimate goal of consumer foods used in the state and in a way that is safe for his health। तो हैसप का जो कंसेप्ट है वो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर की हेल्थ प्रोटेक्शन के गिर्द घूमता है। जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर एंड प्रोडक्ट प्रिपेयर हुई है उसकी सेफ्टी और उसकी होलसमनेस के गिर्द घूमता है कि जो प्रोडक्ट प्रिपेयर की गई है, प्रोसेस की गई है, तैयार की गई है, वो उसको कंज्यूमर्स जब कंज्यूम करेंगे तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी कंसर्न्स हैं उनको हैसप डिस्कस करता है, डील करता है। सो हैसप की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम हैजर्ड एनालिसिस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करते हैं। आगे हम चल के पढ़ेंगे कि हैसप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हैसप को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हैजर्ड एनालिसिस स्टडी करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को हम प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स बोलते हैं। There are some set of guidelines or rules that are concerning with the implementation of HACCP system in food industry that are called as prerequisite programs, that हमें उन मुख्तलिफ जो गाइडलाइंस हैं, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स की जो गाइडलाइंस हैं उनको अडॉप्ट करना है, उनको एज इट इज़ फॉलो करना है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैसप। सो आज की ट्रेनिंग का बेसिक मकसद ये है कि हैसप की जो PRPs हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करें। सो हैसप को अगर हम हिस्टोरिकली देखें, हैसप को अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जो नासा ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जो स्पेस मिशंस हैं उनके लिए उनको ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। उनके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, खलाबाज हैं, उनके लिए सो बेसिकली नासा ने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स डिज़ाइन किए फॉर गेटिंग ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट फॉर देयर एस्ट्रोनॉट्स। सो उन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को हम हैसप बोलते हैं। ठीक है, सो आपको एक बेसिक आइडिया हो गया है कि हैसप क्या है, हैसप कैसे वर्क करता है, और हैसप की वर्किंग के लिए कौन कौन सी प्री रिक्वायरमेंट्स हैं। सो बेसिकली हैसप इज़ अ फार्म टू फोक अप्रोच, मीन्स टू से कि रॉ मटेरियल प्रोडक्शन से लेके उसकी प्रोसेसिंग, उसकी फाइनल प्रोडक्ट फार्मूलेशन, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी सप्लाई चेन, शिपमेंट, तमाम जो पैरामीटर्स हैं, तमाम जो स्टेजेस हैं, हर एक के ऊपर, हर स्टेप के ऊपर हैसप के उस जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंट करने का नाम है हैसप। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज फार्म टू फोक अप्रोच। मतलब रॉ मटेरियल फार्मर ने फार्म लेवल पे प्रिपेयर किया, प्रोडक्शन की, उसकी प्राइमरी प्रोडक्शन भी इसको हम बोलते हैं। सो इसी तरह थ्रू आउट फूड चेन जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, ख्वाह इसकी प्रोसेसिंग हो उस प्रोडक्ट की, उसको पैक करना हो, आगे उसको शिपमेंट करना हो, आगे कंज्यूमर तक पहुंचाना हो, मार्केटिंग करनी हो, उसकी सप्लाई चेन का मैकेनिज्म हो, उसकी कंज्यूमर्स कैसे उसको कंज्यूम करते हैं टिल हिज टेबल, इन तमाम फूड चेन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, स्टेजेस हैं, सभी में हैसप को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करना। सो दैट इज़ कॉल्ड एज फार्म टू फोक अप्रोच। Okay, now we will talk about the prerequisite program that I have already told you that the everything else that needs to be controlled हैसप को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिन जिन जगहों पे हमने कंट्रोल पॉइंट्स लगाने हैं, जिस वे में, जिस मेथड से लगाने हैं, वो सभी पॉइंट्स हम प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स के तहत डिस्कस करते हैं। PRPs or prerequisite programs are essential to the development of an effective HACCP system। PRPs के बगैर हम HACCP को इन ट्रू सेंस इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यही PRPs बेसिकली HACCP सिस्टम की बेस हैं, बेस लाइन हैं। PRPs act as the foundation of this system। The stronger a facility's foundation, the stronger its food safety plan। Thus, PRPs provide the basic environmental and operating conditions necessary to produce safe and wholesome food।
सो डिटरमिन ये हुआ कि जितने भी प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स हैं जिनको हम लेटर ऑन स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, बेसिकली हमें एक बेस लाइन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि हैसब को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। पीआरपीज में फॉर एग्जांपल हैसब की जो प्रेपरेशन है उसमें इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल आ सकता है। जिस बिल्डिंग में इम्प्लीमेंट करना है हैसब को, उस बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है, बिल्डिंग को कैसे डिज़ाइन किया गया है, बिल्डिंग के क्या पैरामीटर्स हैं, जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है वहाँ पे इक्विपमेंट कैसा है, वो तमाम फूड सेफ्टी इश्यूज़ को और हैज़र्ड के जो प्रिंसिपल्स हैं, हैज़र्ड कंट्रोल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको वो कंप्लाई करता है। इसी तरह वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो एम्प्लॉय फ्रेंडली है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो विजिटर्स आ रहे हैं, उनकी हेल्थ और हाइजीन कैसी है, उनका वर्किंग बिहेवियर कैसा है, ये तमाम चीज़ें हैसब के पीआरपीज में आती हैं। सो इनको हम लेटर ऑन स्लाइड्स में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो द फैक्टर्स फॉर अडॉप्टिंग प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम पीआरपीज को अडॉप्ट करते हैं। लाइक नंबर वन इज द टाइप ऑफ फूड मैन्युफैक्चरर, किस किस्म का फूड मैन्युफैक्चरर है, मतलब कौन सा फूड प्रिपेयर किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली हैसब के पीआरपीज को डिटरमिन किया जाएगा। इसी तरह से प्लांट लेआउट कैसी है, जिस इंडस्ट्री में उस वहाँ पे प्रोसेसिंग होगी उस इंडस्ट्री का सेटअप क्या है, उस वहाँ पे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे रूम्स, प्रोसेसिंग हॉल, वहाँ पे अफिलिएटेड एरियाज, वहाँ पे प्रोडक्शन हॉल, QA/QC लैब, वहाँ पे R&D लैब, ये तमाम चीज़ें कैसी हैं, उनका लेआउट कैसा है, वेदर इट इज़ hazard friendly or whether that plant layout is to control the happening of the hazards. So इसी तरीके से रिस्क एनालिसिस है कि वहाँ पे रिस्क को कैसे एनालाइज किया जाता है, वहाँ पे कंट्रोल पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स कैसे लगाए जाते हैं, हैसब में जो CCPs हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, ये तमाम चीज़ें बेसिकली डिटरमिन करेंगी कि कौन कौन सी पीआरपीज को हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे नंबर वन पीआरपी इज इन्वायरमेंट एंड लोकेशन, के जिस जगह पे हम इंडस्ट्री डिज़ाइन करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और तमाम जो भी अफिलिएटेड फूड सेफ्टी और प्रोसेसिंग की प्रैक्टिसेस को हम सर अंजाम देंगे, वो इंडस्ट्री जहाँ पे कायम की जा रही है, सेटअप की जा रही है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वो उसकी लोकेशन कैसी है, वेदर फॉर एग्जांपल हम किसी जगह पे एक डेयरी इंडस्ट्री का सेटअप कायम करने जा रहे हैं, हमने ये देखना कि क्या उसकी विसिनिटी में कोई ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेसिंग सेटअप तो नहीं है, लाइक पोल्ट्री प्रोसेसिंग का यूनिट तो नहीं है। फॉर एग्जांपल उसके एरिया में अगर पोल्ट्री प्रोसेसिंग होगा, मीट प्रोसेसिंग का यूनिट होगा, तो वहाँ पे लाजमी तौर पे उधर की जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड होगा साल्मोनेला से, वहाँ की एयर भी पोल्यूटेड होगी साल्मोनेला से। सो दिस हैज़र्ड मस्ट बी कंसिडर्ड और मस्ट बी फोकस्ड टू अवॉइड द हैपनिंग ऑफ द हैज़र्ड्स। सो इस पैराए में हम इसको इन्वायरमेंट एंड लोकेशन कंट्रोल को हम पीआरपी बोलेंगे हैसब की, कि ये एक प्री रिक्विजिट प्रोग्राम है जिसको हमने हैसब की इम्प्लीमेंटेशन से पहले मद्देनजर रखना है। सो कंसिडरेशन शैल बी गिवन टू पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन, किसी और तरह की कंटेमिनेशन भी हो सकती है। इन्वायरमेंटल कंट्रोल, उसको हमने चेक एंड बैलेंस रखना है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम को हमने उसका चेक एंड बैलेंस रखना है, ठीक है। इसी तरह इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है, उनकी जो फोकस्ड गाइडलाइंस हैं उनको हमने देखना है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे विद द पर्सपेक्टिव ऑफ हैसब इम्प्लीमेंटेशन। सो उसके बाद आती है बारी कंस्ट्रक्शन एंड लेआउट ऑफ बिल्डिंग्स। अब हमने डिसाइड कर लिया कि किस जगह पे हम फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर देखेंगे कि उस सेटअप का जो कंस्ट्रक्शन है, जो लेआउट है बिल्डिंग का, वहाँ पे रूम्स का, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग हॉल का, उन तमाम कंसिडरेशंस को हम देखेंगे कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसी करनी है, रूम्स कैसे बनाने हैं, वहाँ पे जो फ्लोरिंग है वो कैसी होगी,
वहाँ पे वाल्स कैसी होंगी, रूफ कैसी होगी, वहाँ पे जो दो दीवारें आपस में जंक्शंस हैं वो कैसे होंगे, राउंड एज्ड होने चाहिए। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। इसी तरह जो फ्लोर है वो क्या है, सेल्फ ड्रेनिंग होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम वो भी सेल्फ ड्रेन होना चाहिए। इसी तरह ब्रेंचेस इतनी उनका डायामीटर होना चाहिए कि इजीली उसमें से जो ड्रेनेज मटेरियल है वो ड्रेन आउट हो सके। इसी तरीके से अदर कंसिडरेशंस हैं, लाइक बिल्डिंग में आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा यूज़ करना है, किस टाइप का यूज़ करना है। इसी तरीके से वहाँ पे बिल्डिंग के अंदर पेंट कराना है या मार्बल लगवाना है, फर्श के ऊपर मार्बल लगवाना है या सीमेंटेड फ्लोर होना चाहिए, ठीक है। टाइल्स वाला फ्लोर होना चाहिए। बाज़ जगहों पे टाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक डेयरी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो फ्लोर सेल्फ ड्रेनिंग होना चाहिए। और इस तरह की कुछ मतलब वहाँ पे क्रैप्सेस वगैरह नहीं होने चाहिए कि वहाँ पे लाइक पानी फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है प्रोसेसिंग में, तो पानी फर्श के अंदर दरारों के अंदर मतलब चला जाए और वहाँ पे फिर कल को वो जो है फंगस का इशू बन जाए। इसी तरीके से जो दो दीवारें आपस में मिल रही हैं वो राउंड एज्ड होनी चाहिए। आमतौर पे घरों में तो ऐसे होता है या किसी ऑफिस में कि कॉर्नर्ड एज्ड होते हैं। हाउएवर फैक्ट्री के अंदर ख़ास तौर पे राउंड एज्ड जो है वो दीवारें होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे किसी किस्म की कोई लाइक कॉब वेब्स ना लग सकें, जाले वगैरह ना लग सकें, या कोई और इंसेक्ट्स की हाइबरनेट करने का इशू ना हो। फिर फर्दर स्मूथ सरफेस होनी चाहिए दीवारों की, फर्श की, और जो छतें वगैरह हैं, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें उसके कंस्ट्रक्शन और लेआउट में आ जाती हैं कि प्रोडक्शन हॉल का साइज़ क्या रखना है, उसकी जो है डायरेक्शन क्या रखनी है सन के हिसाब से। तो ये तमाम चीज़ें इसके तहत हम इनको कंसिडर करते हैं। देन इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जिसको हम EMP भी बोलते हैं, इसको भी हमने फोकस करना है। लाइक मतलब उस एरिया का हम एक इन्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे कि उधर का इन्वायरमेंट कैसा है, और उधर के इन्वायरमेंट को हम अपनी फैक्ट्री या प्रोडक्शन प्रोसेसिंग हॉल प्रोसेसिंग जो पैरामीटर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली कैसे हम मॉनिटर करेंगे, कैसे उनकी जजमेंट और एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सो इन्वायरमेंट प्रोग्राम मॉनिटरिंग प्रोग्राम में हम इकोलाई का एनालिसिस करते हैं, साल्मोनेला का एनालिसिस करते हैं, इसी तरह लिस्टेरिया का भी जो हम एनालिसिस करते हैं रूटीन में। इसमें स्वैब टेस्टिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्वैब टेस्टिंग के थ्रू या अदर मैकेनिज्म्स के थ्रू हम इकोलाई, साल्मोनेला और लिस्टेरिया ख़ास तौर पे, और इसके अलावा जो साल्मोनेला है, इन सभी की हम इन्वायरमेंट टेस्टिंग करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इस इन्वायरमेंट में इन ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लोड कितना है। क्योंकि अगर एक हद से ज़्यादा इनका लोड होगा तो डेफिनेटली दे विल cause hazards. So these points should be considered. Then internal structures and fittings. अब हम फैक्ट्री के अंदर प्रोसेसिंग हॉल के अंदर जो मशीनरी इंस्टॉल करेंगे, लाइक आपने देखा होगा कि जूस इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के क्लोज्ड चैनल्स होते हैं। डेयरी इंडस्ट्री, मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी होती है जिसमें क्लोज चैनल्स और पाइपिंग सिस्टम होता है। सो हमने देखना है कि उसका मटेरियल कैसा है, ठीक है, फूड ग्रेड मटेरियल है या नॉन फूड ग्रेड मटेरियल है, क्योंकि उसके अंदर से डायरेक्टली फूड प्रोडक्ट ने पास आउट करना है, फ्लो आउट करना है। सो दैट मशीनरी शुड बी ऑफ फूड ग्रेड। इसी तरह से SS 316 ग्रेड होना चाहिए उस मशीनरी या इक्विपमेंट को जिसके अंदर से प्रोडक्ट ने पास आउट करना है, ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट हमारा फूड आइटम उस मशीनरी या उस स्टील सिस्टम के साथ इंटरेक्ट ना करे या रिएक्शन ना करे। सो उसके अलावा उन फिटिंग्स या इंटरनल स्ट्रक्चर्स की मैनेजमेंट कैसे है, उनको मेंटेन कैसे करना है, उनकी सफाई सुथराई, उनकी CIP सिस्टम, उनकी जो क्लीनिंग इन प्लेस है, क्लीनिंग है, सैनिटाइजेशन है, तमाम चीज़ों को कैसे हमने मैनेज और मेंटेन करना है। और इसी तरीके से जो पाइपलाइंस हैं वो बाज़ का ये रिक्वायरमेंट होती है कि वो सेल्फ ड्रेनिंग और सेल्फ फ्लोइंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी सेल्फ फ्लोइंग और सेल्फ ड्रेनिंग होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर जालियां कवर्ड होनी चाहिए ताकि
उनके अंदर कोई भी जो है वो मटेरियल, कोई ब्लॉकेज सिस्टम, कोई ब्लॉकेज मटेरियल उनके अंदर से पास आउट करके उनको ब्लॉक ना कर सके। इसके बाद आती बारी इक्विपमेंट एंड लैब फैसिलिटीज़ की। वहाँ पे जो अदर इक्विपमेंट्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस प्रोडक्ट के साथ कांटेक्ट में आते हैं, उनका मटेरियल, उनका ग्रेड, उनका जो है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको हमने देखना है। ये भी सभी चीज़ें पीआरपीज में आती हैं। इसी तरीके से वहाँ पे लेबॉर्ट्री एनालिसिस सिस्टम के आपके मुख्तलिफ सैम्पल्स होते हैं, लाइक रिसेप्शन में होते हैं, लाइक प्रोसेसिंग हॉल में मुख्तलिफ किस्म की सैम्पलिंग परफॉर्म की जाती है। उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट है, जो पैकेजिंग सेक्शन में मुख्तलिफ किस्म की पैकेजिंग मटेरियल की या जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, फिनिश्ड फूड प्रोडक्ट है, उसकी एनालिसिस और टेस्टिंग की जाती है। सो उस एनालिसिस और टेस्टिंग के लिए आपके पास लेबॉर्ट्री का होना ज़रूरी है आपके सेटअप के ऊपर। सो इसमें ख़ास तौर पे दो रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं बेसिकली, कि अगर तो कोई ऑर्गेनाइजेशन FSSC 22000 को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो उनके लिए तो रिक्वायरमेंट है कि उनके अपने सेटअप के ऊपर लेबॉर्ट्री ISO 17025 रिकॉग्नाइज्ड लेबॉर्ट्री होनी चाहिए। ISO 17025 सिस्टम जो है वो डील करता है लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम को। सो वहाँ पे ISO 17025 रिकॉग्नाइज्ड लैब का होना ज़रूरी है। हाउएवर अगर हम ISO 22000 या हैसअप की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे उस सेटअप पे ISO 17025 रिकॉग्नाइज्ड लेबॉर्ट्री का होना ज़रूरी नहीं है। हाउएवर मतलब जो ISO 17025 है उसकी जो है सर्टिफिकेशन के बगैर भी लेबॉर्ट्रीज वहाँ पे सेटअप पे उस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर सकती हैं। इसी तरीके से कुछ फर्म्स, कुछ इंडस्ट्रीज लेबॉर्ट्री एनालिसिस या लैब्स को आउटसोर्स करती हैं, लाइक उनके अपनी फैसिलिटी पे लेबॉर्ट्री नहीं होती, हाउएवर वो अपने सैंपल्स को रूटीन में किसी थर्ड पार्टी, थर्ड लैब से एनालाइज करवाते हैं। ये भी पॉसिबल है। हाउएवर उस फैसिलिटी पे मौजूद होना बेहतर है, ताकि ऑनलाइन सैम्पलिंग के केस में वहाँ पे डायरेक्टली सैंपल्स को एनालिसिस, एनालाइज किया जा सके। सो लेबॉर्ट्री के अंदर जो पर्सोनल काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होना बड़ी ज़रूरी है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग, उनकी जो हेल्थ और हाइजीन के हवाले से ट्रेनिंग है, उनकी जो फायर सेफ्टी है, उनकी इमरजेंसी एग्ज़िट पे ट्रेनिंग, उनकी मुख्तलिफ जो सेफ्टी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग, फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग पे ट्रेनिंग, इस तमाम चीज़ों के मतलब ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। और उनकी कॉम्पिटेंसी दैट the personnel working in that lab must be properly qualified and experienced to run that lab. So ये लेबॉर्ट्री एनालिसिस की बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि PRPs के ज़मरे में आती है। इसी तरीके से लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ किस्म की लेबॉर्ट्रीज हो सकती हैं, लाइक रिसेप्शन लैब है जहाँ पे जनरलाइज्ड टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। कोई भी रॉ मटेरियल आपकी इंडस्ट्री में आता है या कोई भी जो पैकेजिंग मटेरियल आपकी इंडस्ट्री में आता है, उसकी इनिशियल जो है वो एनालिसिस और जो उसकी एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद ऑनलाइन प्रोसेसिंग लेबॉर्ट्री होती है जहाँ पे प्रोसेसिंग के दौरान सैंपल्स को एनालाइज किया जाता है। देन उसके बाद जो R&D लैब है जहाँ पे नई रेसिपी और नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात की जाती है। फिर उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस लेबॉर्ट्री है जहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी कंडक्ट की जाती है। देन लेबॉर्ट्री की ही बात करें तो वहाँ पे मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं फॉर एनालिसिस और टेस्टिंग और प्रोसेसिंग के लिए। सो उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, लाइक pH मीटर है, थर्मोमीटर है या अदर असम्बलीज हैं, उनकी कैलिब्रेशन होना ज़रूरी है एज पर स्टैंडर्ड SOPs, standard operating procedures. So SOPs must be followed for the calibration. Like यहाँ पे एज एन एग्जांपल बात की गई है कि थर्मोमीटर की कैलिब्रेशन के लिए क्या है, उसका डेट, टाइम, थर्मोमीटर नंबर, रेफरेंस टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर, एडजस्टमेंट्स और इनिशियल्स के साथ उसको मार्क करना। ये तमाम रिकॉर्ड वहाँ पे लॉग बुक के अंदर, लेबॉर्ट्री की थर्मोमीटर लॉग बुक के अंदर दर्ज होना ज़रूरी है, ताकि उसको फर्दर रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। इसी तरीके से केमिकल्स कंट्रोल्स लेबॉर्ट्री के लिए भी और इंडस्ट्री की जो प्रोसेसिंग है उसकी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी डिफरेंट केमिकल्स यूज़ होते हैं।
सो जो केमिकल्स हैं, बेसिकली जो भी केमिकल परचेज किया जाता है उसके साथ एक SDS सेफ्टी डाटा शीट प्रोवाइड की जाती है सप्लायर की तरफ से। सो वो सेफ्टी डाटा शीट के ऊपर जितनी भी उस केमिकल के अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको एज इट इज़ फॉलो करना ज़रूरी है। लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है, या कोई और केमिकल है, कोई पाउडर्ड केमिकल है, कोई फूड केमिकल है, सबको कैसे हैंडल करना है, कैसे स्टोर करना है, किस तरीके से उनको यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है, उन सभी के बारे में इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। इसी तरह उनकी जो शेल्फ लाइफ के बारे में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फिर उनकी जो कीपिंग क्वालिटी के बारे में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको फीफो का जो प्रिंसिपल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैसे मैनेज करना है, सो तमाम चीज़ों के बारे में इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज़ फॉलो करना है, उस तरीके से केमिकल्स को मैनेज करना है। उसके बाद पेस्ट कंट्रोल और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात होती है। पेस्ट कंट्रोल बेसिकली एक प्री रिक्विजिट प्रोग्राम है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैसअप। सो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हैसअप को इम्प्लीमेंट करने के लिए IPM और पेस्ट कंट्रोल की एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट को पूरा किए बगैर, इस PRP को पूरा किए बगैर या इसको अडॉप्ट किए बगैर हम हैसअप को इन ट्रू सेंस इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इंसेक्ट पेस्ट की बहुत ज़्यादा तादाद, एक तो तादाद के हवाले से और दूसरा इनके जो हेल्थ हैज़र्ड्स हैं या अदर हैज़र्ड्स हैं उनके हवाले से भी हम इनको देखें तो बहुत ज़्यादा इनके कंसर्न्स होते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं, इसी तरीके से इनके अदर कंसर्न्स हैं जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और अदर पैरामीटर्स को और सेफ्टी कंसर्न्स को वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो इट शुड बी गिवन मोर वर्थ as per the discussion of prerequisite programs for the implementation of HACCP system in any food industry. Okay, hygiene, cleaning, incoming materials, inspection and monitoring procedures to be implemented to avoid creating an environment conducive to pest activity. The establishment shall have a nominated person to manage pest control activities or deal with appointed expert contractors. Pest management programs shall be documented and shall identify target pests and address plans, methods, schedules, control procedures, and where necessary the training requirements. Then programs shall include a list of chemicals which are approved for use in specified areas of the establishment. So बुनियादी तौर पे पेस्ट कंट्रोल के लिए दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि पेस्ट की एंट्री को महदूद किया जाए, मतलब पेस्ट को उस विसिनिटी में, उस प्रोसेसिंग हॉल में, उस फैक्ट्री में आने से रोका जाए, या उसके बाद अगर बिलफर्ज किसी तरीके से वो आ जाते हैं, लाइक ओपन डोर्स हैं, ओपन विंडोज़ हैं, खिड़कियाँ वगैरह हैं, मुख्तलिफ जगहों से वो एंटर हो जाते हैं, या इसके अलावा मुख्तलिफ ड्रेनेज सिस्टम, बैड ड्रेनेज सिस्टम की वजह से लाइक रैट्स हैं, कॉकरोचेज हैं, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, लिजर्ड्स अक्सर आ जाती हैं। सो उनको कंट्रोल कैसे करना है, उनका तदारुक कैसे करना है, ये दो मैकेनिज़्म अडॉप्ट किए जाते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के पेस्ट कंट्रोल गैजेट्स अप्लाई किए जाते हैं, लाइक रैट बेट्स अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। लिजर्ड कंट्रोल गन होती है एक। इस तरीके से मुख्तलिफ स्टेशंस के ऊपर जो ग्लू बैंड्स लगाए जाते हैं फॉर कॉकरोचेज़, फिर फ्लाई किलर्स इंस्टॉल किए जाते हैं, इंसेक्टोक्यूटर्स इंस्टॉल किए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा इंडस्ट्रीज़ के अंदर ब्लू लाइट मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हैंग की हुई होती है, इसको UV लाइट बोलते हैं या इंसेक्टोक्यूटर बोलते हैं। सो ये डिफरेंट किस्म के गैजेट्स हैं जो कि पेस्ट को कैप्चर करने के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं। ये सारा निज़ाम एज़ पर स्टेटेड मैप होता है। IPM का एक मैप डिज़ाइन किया जाता है, मैप के थ्रू हर चीज़ को उसके प्रॉपर स्टेशन के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। इसी तरह रैट बेट्स हैं, बिल्लियों को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ बेट्स होती हैं, शिकंजे वगैरह होते हैं। इस तरह किसी जगहों पे स्नैक्स बेट्स होती हैं, ठीक है। सो इन सभी गैजेट्स को कहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है, कैसे उनको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें जो क्वालिफाइड पेस्ट कंट्रोल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो हमें बताएंगे इस बारे में। और इसका इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रखना,
उसके बाद फ्यूमिगेशन और स्प्रेज की बारी आती है। मुख्तलिफ जगहों पे हमें गैजेट्स के अलावा हमें मुख्तलिफ स्प्रेज करनी पड़ती है, फ्यूमिगेशन करनी पड़ती है, ठीक है। फ्यूमिगेशन के लिए कौन सी स्प्रे यूज़ करनी है, फ्यूमिगेशन किस बंदे ने करनी है, फ्यूमिगेशन कैसे करनी है, कब करनी है, किस टाइम पे करनी है, कौन सा उसमें केमिकल यूज़ करना है, ये तमाम डिटेल डिस्कशन एक क्वालिफाइड पर्सन ही आपको बता सकता है जिस कंपनी से आप फ्यूमिगेशन और आईपीएम की सर्विसेज ले रहे हैं। सो उनकी इंस्ट्रक्शंस को हमने क्लियरली फॉलो करना है। जो क्वालिफाइड पर्सन है, जो पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर है या पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर है उस इंडस्ट्री का, उस कंपनी का, वो इस तमाम प्रोसीजर के ऊपर एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड होना चाहिए ताकि उसको पता हो कि कैसे जो है आईपीएम को फर्दर कंसिडर करना है टू कंट्रोल दी एक्टिविटी ऑफ insect pests. So it is a very much important parameters of prerequisite program for the implementation of HACCP in any food industry. So हर एक एक्टिविटी को हमने कंट्रोल करना है। Each and every activity or step should be documented and recorded. रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए।